عمران خان کی دوبارہ گرفتاری میں کون رکاوٹ ہے اور آج بھی ان کو 3 کیسوں میں ضمانت مل گئی؟ نیب نے کیسے پوری گیم ہی پلٹ دی اور قادر پٹیل کو ہی پاگل قرار دے دیا؟ ججوں کی لڑائی شروع، اس میں کون جیتے گا؟ کس حد تک یہ چیزیں جائیں گی؟ حامد میر صاحب کا کھرا اور پورا اور مکمل سچ کی سنویت کا؟ شیخ رشید کی مافیا کہا مجھے چھوڑ دو، ایک دلچسپ بات امریکہ کو پاکستان پر حیرت، کہا پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ ایک لاہور کی خاتون وکیل کے ساتھ کس طرح کا رات کو ظلم کیا گیا؟ آج کے ان اہم نکات کے اوپر آپ سے تفصیلی بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج عمران خان اپنی اہلیہ کے ہمراہ لاہور زمان پارک سے اسلام آباد میں پہنچے۔ راستے میں جتنے بھی ٹول پلازے تھے وہاں پہ ان کا استقبال کیا گیا، تازہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، گاڑیوں کا قافلہ بھی ساتھ تھا، لوگ بھی ساتھ ملتے رہے۔ ایسے نامساعد حالات میں لوگوں کا آنا، ملنا، پھول کی پتیاں بکھیرنا اس بات کی غمازی ہے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ تھے، ہیں اور یقیناً رہیں گے بھی۔ اس سے قبل بتا دیجئے وہ کون تھا ایک سیاستدان جو نیب کی عدالت میں یا کسی بھی عدالت میں پیش ہونے کے لیے گیا ہو تو اس کے اوپر پھول برسائے گئے ہوں، اگر برسائے بھی گئے پلانٹڈ تھے، خود سے خریدے، خود اپنے اوپر ڈلوا دیے۔ یہ بڑے کڑوے سچ ہیں جن کو ماننا پڑے گا۔ پھر عمران خان وہاں پہنچے تو ان کی ضمانت 3 دن کے لیے ہو گئی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہ لوگ اگر 15,000 لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں، جیلوں میں ڈال سکتے ہیں، عمران خان کو ایک بار گرفتار کیا تو دوبارہ بھی تو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عمران خان ان کی آنکھوں کا تارا نہیں بلکہ یہ ایک سخت پتھر بن کے ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ان سے جان چھڑائی جائے، بس میں ہو تو کیا سے کیا نہ کر دیں، مگر ایک طرف تو عوامی طاقت ہے اور دوسری طرف وہ کون ہے جو عمران خان کی دوبارہ گرفتاری میں رکاوٹ ہے؟ بالکل پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ رکاوٹ ہیں۔ IMF کے ساتھ معاہدہ کوئی نہیں ہو رہا، عمران خان کو پکڑا تو سیاسی انتشار پھیلے گا، ملک میں سیاسی عدم استحکام زور پکڑے گا۔ ایک یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کے اندر حالات ہیں وہ عمران خان کی گرفتاری میں رکاوٹ ہیں، یعنی کہ اگر یہ معاشی طور پہ ٹھیک ہوتے، IMF سے معاہدہ ہو چکا ہوتا، IMF نہ کہتا کہ آپ اپنے ملک کو ٹھیک کرو، سیاسی عدم استحکام ختم کرو، اور IMF دشمن کہہ رہا ہے امریکہ، پاکستان جس کو پاکستان کے عوام دشمن سمجھتے ہیں، دشمن کہہ رہا ہے پاکستان کو کہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام ختم اور آئین کے اوپر عمل کرو۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ وہ حالات ہیں جو عمران خان کی دوبارہ گرفتاری میں رکاوٹ ہیں، اور عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ اسلام آباد سے 3 دن کے لیے مزید ضمانت مل چکی۔ ایسے حالات میں بھی عمران خان کا اہلیہ کے ہمراہ آنا، اور جہاں پہ اتنے بڑے کھلواڑ ہوں، پتہ ہو 150 FIR ہے، پتہ ہو جھوٹے کیسز ہیں، پھر بھی اس کے اوپر اپنے حصے کا کام کرنا جرأت والا کام ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ ججوں کے درمیان لڑائی شروع ہو چکی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کھلے عام سر عام سامنے آ چکے۔ جو مظاہر نقوی کا آڈیو کا معاملہ ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کے کسی بندے کے ساتھ بات کرنے کا، اس کے اوپر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ ایسے نہیں کریں گے، میں یہ کیس مظاہر نقوی صاحب کی آڈیو لیکس والا جوڈیشل کمیشن کو بھیجتا ہوں۔ انہوں نے بھیج دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ اپنا الگ گروپ بنا کے کہتے ہیں کہ ہم آئین کے اوپر عمل کریں گے، حکومت کی بات مانیں گے، یعنی کہ حکومت بڑی ہے۔ یہ جج صاحب خود کسی کے شاید نوکر ہیں یا چھوٹے ہیں، تو ان کو یہ لگتا ہے اور وہ مخالفت کرتے ہیں چیف جسٹس کی کہ آپ اس کمیشن کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بات ان کی 1000% ٹھیک ہے قاضی فائز عیسیٰ کی کہ عمر بندیال جو ہیں ان کی ساس صاحبہ کا نام ہے، تو لہٰذا وہ کیس خود نہیں سن سکتے۔ یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ جن کی تو آڈیو آپ کے سامنے آ گئی، یہ تو ٹھیک، لیکن یہ آڈیو ریکارڈ کون کرتا ہے،
वो कौन है ये मालूम करें, ये आइनी है गैर आइनी है, ये कानूनी है या गैर कानूनी है, ये हलाल है या हराम है, उस तरफ आप जाएं तो आपको मौत पड़ जाए। और जब ऑडियो आ जाएं तो उनको वजह बना के रिकॉर्ड करने वालों को ना पूछें, लेकिन इनको ज़रूर पूछें कि भाई आपने ये बात क्यों की। ये खिलवाड़ है, ये कोई कानून और आइन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ग्रुपिंग हो रही है, अपनी पसंद की चीज़ें हो रही हैं। तो काजी फाइज ईसा साहब अब सामने आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि जैसा मैं चाहता हूँ, जैसे हुकूमत चाहती है हम वैसे काम करें, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो कहते हैं कि ऐसे नहीं होगा। अब चंद लम्हों के लिए एक बात सोच लीजिए, इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम की 11 जमातें एक पेज पे हैं। पहली दफ़ा आधी अदलिया आइन के ऊपर अमल करवाना चाहती है और इमरान खान के साथ है, और आधी जो है वो हुकूमत के साथ है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ। भट्टो साहब को जब फांसी हुई, बाकी हालात होते रहे, पकड़ दकड़ जरदारी साहब के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, तब तो ये सारी अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे थे। वो थोड़ी देर के लिए सोचना ये है कि अगर ये अदलिया के चंद जजेस भी जो हैं वो उनके साथ मिल जाते तो आज इमरान खान का इन सारे लोगों का क्या होता। वो अमेरिका जो है वो वहाँ से बैठ के कहता है भाईजान ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नहीं करो, इसमें पाकिस्तान के आम अवाम को आप कुचल रहे हो, इसमें ड्यूल नेशनल भी हैं, इसमें हमारे अमेरिकन नेशनल भी हैं, तो ये गलत हो रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है यहाँ पे इनको गलत सही और सही गलत लगता है, उल्टी गंगा बहती है। नैब ने गेम ही पलट दी, यानी कि जिस कादर पटेल साहब ने इमरान खान को पागल करार दिया था उसको नैब ने पागल करार दे दिया कि आप इमरान खान को पागल कह रहे थे लिहाजा आप खुद ही पागल हो। ये कैसे कहा गया, किस तरह से ये मीनिंग्स में ले रहा हूँ। नैब ने गेम ऐसे पलट दी कि उन्होंने कहा कि इमरान खान के जो पेशाब के, खून के, बाकियों के टेस्ट लिए गए उसमें ये बंदा 72 साल की उम्र में सब टेस्ट बेहतरीन है, पॉजिटिव हैं, मेंटली ये ठीक हैं, फिजिकली ठीक हैं, कोई बीमारी नहीं है इस शख्स को सवाए वो टांगों के ऊपर जो गोलियों के निशान या बाकी चीज़ें हैं। तो अगर नैब ये कह रहा है तो इसका मतलब हुकूमत झूठी है। ये अब कादर पटेल खुद कोई पागल हैं जिन्होंने इमरान खान को पागल करार दिया था, और नैब की असल रिपोर्ट के तहत इमरान खान कोई नशा नहीं करते, कोई पेशाब का इशू नहीं है, कोई कोकेन किसी ड्रग के हवाले से चीज़ें सामने नहीं आई, और कादर पटेल और हुकूमत यानी कि जो उन्होंने बात की उसको सरे से रद्द कर दिया। और नैब के पास जो असल रिपोर्ट है उसके मुताबिक इमरान खान मेंटली हर लिहाज से ठीक है और कोई भी नशा जो है वो इन रिपोर्ट्स के अंदर नहीं आया। तो इससे साबित ये हुआ कि फिर जो कादर पटेल हैं, अब्दुल कादर नहीं कादर पटेल, वो खुद पागल हैं जो दूसरे को पागल करार दे रहे हैं। तो नैब ने उनकी सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। इंसानी हकूक़ के ऊपर ये सेनेटर हैं अमेरिका के बॉब जो कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर जिनको अच्छी खासी तशवीश है। अब आइए 9 मई के ऊपर, जब टीवी स्क्रीन के ऊपर सहाफ़ी बैठते हैं तो मजबूर, लाचार, बेबस होते हैं। वही हामिद मीर कैपिटल टॉक के अलावा जब किसी सेमिनार में जाते हैं तो उन्होंने इतना बड़ा, अच्छा, सच्चा और खरा सच बोला है कि उसमें उन्होंने सब चीज़ें वाज़ह कर दी। उसमें सोहेल वड़ाइच बैठे थे, वो बेचारे पूरी बात नहीं कह सकते, मैंने महसूस किया। उनके साथ हामिद मीर थे, एक और बंदा डेलीगेशन में शामिल था, जबकि फवाद हसन फवाद भी थे। हामिद मीर ने पूरा और खरा सच बोलते हुए ये कहा कि जिनको सियासत से रिटायर्ड होना है वो नहीं हो रहे, लेकिन इमरान खान एक पार्टी को वो सियासत से रिटायर्ड करवा रहे हैं, उसी एक पार्टी के ऊपर 9 मई के वाक़यात को शामिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तहकीकात हों तो पता चल जाए कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने ऐसे नहीं किया, ये कोई और हैं जिन्होंने ऐसे किया। तो मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ। जैसे हामिद मीर कह रहे हैं, उनके बाकौल सीधे और साफ और वाज़ेह अल्फाज में है कि ये प्लान खुद से तरतीब दिया हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने, जिसकी जद में इमरान खान को लाना था, और अगर ये ना होता तो फिर क्या होता, कुछ और करते। तो इससे साबित क्या हुआ कि 9 मई के वाक़यात करवाए गए, वजह बनाई गई, वजह के बाद अपना
काम किया गया, अपना काम ये किया अबरारुल हक, ये वो आगे पीछे सब लोगों को पकड़ा, डराया धमकाया और पीटीआई से मोहब्बत, हमदर्दी, खुलूस सब कुछ बखेर के रख दिया, क्योंकि शुरू से ये सारा कुछ करते हैं। मगर बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? ये हालात कब तक ऐसे चलते रहेंगे? निज़ाम एक्सपोज हो रहा है। मैं बड़ा बदज़न था कि ये ट्विटर के ऊपर हामिद मीर कुछ और कहते हैं, टॉक शो में बैठते हैं कुछ और होता है, बड़ी कोशिश करते हैं बैलेंस करें, मगर इन्हीं ही के तो अपने भाई उनके मोरे हैं। मगर जो अच्छी बात कहे उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। ये अच्छी बात वो नहीं है जो किसी के खिलाफ हो और किसी की हमदर्दी में हो। सच वो है जो जिसके भी खिलाफ हो, वो होना सच चाहिए। जो रियलिटी है वो साफ ही आज नहीं बताएगा तो ये अपने साथ सारी चीज़ें लेके उसको कब्र में नहीं जाना चाहिए। या तो कोई किताब लिखे या सही वक्त के ऊपर सारी बातें बताए, वरना ये तोक अपने गले में डाल के अगर साथ दुनिया से चले जाओगे तो आपको कोई भी माफ़ नहीं करेगा। अगर आप इतने बड़े सहाफ़ी थे, हैं, अल्लाह करे आप रहेंगे भी, तो आपको पूरा सच बोलना चाहिए। ज़िंदगी आर्जी है, मर जाएंगे ये सारे लोग, इनको कम से कम कुछ ना सही तो सच बोलना चाहिए। और अदलिया को और कुछ ना सही तो सिर्फ इंसाफ कर लेना चाहिए। क्या मांगती है ये कौम? यही दो चीज़ें कर ली जाएं, एक मीडिया और उससे ऊपर बड़ा इदारा अदलिया ठीक हो जाए, इस मुल्क के अंदर अमन और शांति और सब कुछ ना हो जाए। इंसाफ ये करें, मीडिया पूरा सच दिखाए, ये किसी के पिट्ठू ना बने। हम भी छोटी बुराई समझते हुए इमरान खान का साथ ना दें, ये चीज़ें ठीक ना हो जाएं, किसी को कोई माफ़ी ना हो। जो गलत है उसको सामने लाए, मीडिया का काम ही यही है। लेकिन हमारे यहाँ पसंद और नापसंद की बुनियाद के ऊपर फैसले और सारी चीज़ें की जाती हैं। लाहौर की खातून वकील के साथ बहुत नाइंसाफ़ी और जुल्म किया गया। रात के 3 बजे के पहर उनके घर पे छापा मारा गया। हुआ क्या कि जिस दिन 9 मई के वाक़यात हुए उस दिन इस खातून के फ़ोन की लाइव लोकेशन ज़मान पार्क के आसपास में थी। वो पता नहीं कैसे वहाँ से गुजर गई। उसको वजह बना के उन्होंने वहाँ पे रेड किया, उनके बच्चों को डराया धमकाया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हुई और तहकीक करनी थी। ये पुलिस है लाहौर की या आप कोई हैवान है? यानी कि आपको इसी खातून को अगर इन्वेस्टिगेट करना था, मान लिया लाइव लोकेशन वहाँ पे थी, वो इसके चैम्बर में जाते, दिन के वक्त चले जाते, कहीं और मिल लेते, इसका पूरा चैम्बर है वहाँ पे आराम से बैठते तो बातचीत हो जाती। और मर्द भी होता तो फिर भी ऐसे नहीं करना चाहिए था। सुबह के 3 बजे जाके रेड करते आपको डाकू। ये कौन सा कानून है और किस तरह से चीज़ें, और उसको आपने उसके साथ इतना जुल्म और नाइंसाफ़ी किया कि सुबह के 3 बजे जाके ड्राइव, क्या इंप्रेशन दे रहे हैं आप? बच्चों के ऊपर इस तरह के वाक़यात एक बार पेश आ जाएं उनके साथ, सारी ज़िंदगी वो सदमे से बाहर नहीं निकल सकते। आपके भी बच्चे होंगे, एहसास इसलिए नहीं है, शायद हराम खाते हैं आप लोग। ये हराम खाने से सूंघने की, महसूस करने की, कई बार सुनने की, ये सारी हिस्से मर जाती हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता। तब पता चलेगा जब रात को नींद नहीं आएगी, नींद की गोलियां खाओगे, जब शुगर हो जाएगी, कुछ खा नहीं सकोगे, अल्लाह की नेमतें सामने पड़ी होंगी, आप मजबूर और लाचार हो जाओगे। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता याद रखिएगा, इस दुनिया के अंदर इंसानों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियाँ और जुल्म जो करेगा वो जब तक सज़ा नहीं काटेगा यहाँ पे, बाकी तो बाद में पूछा जाएगा ना। जो कुकलबाद हैं उनके बारे में यहीं भी पूछा जाएगा। बहरहाल शेख रशीद की माफ़ियाँ हैं, मुझे छोड़ दो, किसी और को पकड़ो। शेख साहब कहते हैं मैं तो 9 मई को था ही नहीं, मुझसे क्यों सवाल पूछते हो? माफ़ी दे दो, छोड़ दो मेरी जान, उनसे पूछो जो वहाँ पे मौजूद थे। मेरा कोई लेना देना नहीं है इन वाक़यात के साथ। और मेरे घर पे क्यों गए? अभी किसी का हाथ और पता नहीं बाजू तोड़ दिया, माँ के घर जाते रहे, इन लोगों को इतना मारा कि बताओ शेख रशीद साहब कहाँ पे हैं? शेख साहब तो कहीं छुप के बैठे हैं, कहीं कभार वीडियो बयान भी आ जाता है, तो उनकी लाइव लोकेशन को डिटेक्ट कर लो। आपके पास दुनिया का बेहतरीन सिस्टम लगा है, जाओ शेख साहब को पकड़ो, जेल के अंदर डाल दो और अपनी हवस, अपने इरादे, अपनी नीयतें जो हैं वो पूरी कर ली जाएं। ये सारे हालात थे। इसके बाद अगले एपिसोड में इससे अहम खबरों के साथ फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।